to all the panelists. Welcome to our webinar on which we have named Abheda Bhava to signify the very special relationship and very intimate relationship between Kathak and spirituality, Bhakti. We are very, and of course for Shashadhar sir it's the dance and spirituality. So we are going to begin. And before we begin, I would just like to take a moment to introduce all the panelists we have for the evening, although they don't need an introduction. So I will start with, of course, Shobna ma'am. Padma Shri Guru Vidushi Shobna Narayan ji is a performer and a guru. She is one of India's most celebrated and outstanding Kathak maestros, and she is well known both as a choreographer and a performer. She has blazed a trail in the field, imbuing it with depth, maturity, and ennoblement. Then we have with us this evening Guru Vidushi Jayantimala Mishra ji. She is the daughter, of course, of eminent Kathak personality Kathak Samraghi Sitara Devi ji, and she is a stalwart in her own right. She is the recipient of several awards. She combines both tradition and modernity in her presentations. She believes that enrichment of any art is a dynamic process in which purity and innovation need not be mutually exclusive. Today we also have with us Guru Vidushi Vidhi Nagar ji. She is technically versatile and immaculately proficient in her expertise. She has specialized in the bhava elements of Kathak. She has also been deeply involved in reviving the Baitiki style of traditional Kathak, thus innovating to go back to the roots of Kathak. She's an associate professor of Kathak and the HOD of the dance department at Banaras Hindu University. We have with us Padma Shri Guru Pandit Shashadhar Acharya ji. He is a Chau exponent from Saraikela, Jharkhand. As moderator, we have today my Guruji, our Guruji, Guru Vidushi Shushmita Banerjee ji. She is a recipient of several awards, including the Emeritus Fellowship. She has schools in Kolkata, Kerala, and Geneva, and is an associate professor at Atelier d'Ethnomusicologie, Geneva. As the artistic director of Kolkata Cultural Center Deshopriyo, she has organized seminars, dance festivals, and outreach programs, namely Moksha, Natya Shastra, and Bhumi Sutra. Her choreographic works on Chakra, Kalidas, Ramayan, and Mahabharat have received special recognition. With that, I will invite my Guruji to take over now. Thank you so much to all the panelists for being with us today, and I hope we have a wonderful session ahead. Pranam. नमस्कार शोभना जी नमस्ते। नमस्ते कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। I'm very honored and I'm very happy that we could meet in this kind of atmosphere, but anyway we are still thinking, and during this pandemic many questions have arisen in our minds because we got a time to just step back from stage, sometimes from the classrooms, and go deep within. And I've always had this query in my mind that what we would say is spirituality and bhakti, and what it means to us, because it has different meaning to all of us and to our dance, how we are connecting it. We all know that spirituality is something which is beyond the body. It is a connection with the higher self. That is how I see it. So I would like all of you in turns to express how you have looked at dance as a source of bhakti and spirituality. So first, if Shobna ji starts, and first, who are you asking first? First, Shobna ji, you start. Okay. For me, spirituality is, a recognition of something, a power which is beyond ourselves. Something which is indefinable, something which is cosmic energy, something it's beyond. And that something is also giving us the driving force to go.
to move on. So spirituality really extends to, for me, that is personally, is something within, an urge within to get to know or to connect yourself with the higher self, whatever that power be. Well, I mean, you can give it any name. There's no indefinable. And that is perhaps, you know, what our philosophy talks about. It's talking about Nirankar. I mean, Om, it's Nirankar. It's Shashwat. It's completely, it's all pervading. So for me, it is that. And Kathak, when you're talking about Kathak, it is so related because for us in our Indian classical dance styles or in our Indian philosophy, performing arts is a medium, a marg, a bhakti marg hai, wo gyan prapti ke liye, us higher self ke liye. You know, so we are elevating our inner self. Our ultimate aim always is to connect ourselves with the higher realm, with the higher being or whatever, you know, however you may. And therefore, when you talked about spirituality and bhakti, bhakti is that devotion part of it, which is the path leading to it. So it's just the path. Spirituality is the entire cosmos within which you're going and connecting with the higher self. So both are there. It is like Dvait and Advait. It is there. And I'm not talking about ritualism. No. It is beyond ritualism. It is beyond forms, you know, the forms that we give it. It is beyond that. So it is an expression. And whatever you are in, and for me, Kathak is for all of us. We are all Kathak, at least majority of us are Kathak. There's one Krishna amongst us who's of a different discipline. But for us, in all our classical dance forms, it is that Bhakti Marg is through a Kriya. It is a Kriya Yoga. It is which itself is a Bhakti Yoga. And then it's leading you towards that, you know, sort of union with the spirit, spiritual higher being, whatever be that. Well, it is an undefinable commodity, if I can use that word. And it always reminds me that, you know, when you are thinking of the Om, the eternal Om, there is nothing. There's just a cosmic sound. It's a void. And yet there's so much of resonance in it. It suddenly evokes something within you and you're connecting it. Whether it is the Om of our Indian philosophy, or whether it is the Gregorian chant, or whether it is the Buddhist chanting which comes from within, some way you are always going into the darkness of that womb, the eternal cosmic womb. And so in that search to be with the higher self and to be in union with the higher self. And it always reminds me of a poem which that, you know, the sound of the flute, which is eternal and which makes you आप सुध बुध खो बैठती हैं. हमारी तो भक्ति पीरियड के जितने पोएट्स हैं वो तो उसी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स, कि आप the sound of the flute transports you so much that you just transcend your inner self. And therefore in that I always remember that even in Sufi philosophy, Rumi has said the same thing, that, you know, the sound of the flute transports him to another being, where you are, आपको ऊपर ले जाती है उस higher spiritual ethos के लिए. So I think spirituality and bhakti and dance and any classical performing arts or that way is leading you to that meditative state, that state of meditation which is part of that bhakti marg and which is leading you to that higher realm. Shashada, share your views. आपका जो अनुभव, आपका जो भावना है आप हमारे साथ. सोमनाथ ने जो बोला बिल्कुल मैं उस पर 100% एग्री हूँ, एकदम 100% एग्री हूँ. लेकिन
क्योंकि मैं एक ऐसा परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जहाँ पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंत्र सब कुछ चलता था, और मैं उसमें से मेरे पिताजी एक कलाकार थे और मैं कलाकार बना। तो मैं घर से ही ये चीजों को देखते हुए और बचपन से इन चीजों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति जो है वो डिफरेंट वे में भी हो सकता है, अलग अलग जगह से भी हो सकता है। मेरे अगर पिता माता के प्रति मेरा भक्ति नहीं है तो फिर मैं और जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, वो तो ये सारा भक्ति जो है एक रास्ता है, एक मार्ग है, और उस मार्ग से हम चलते हैं। और वो मार्ग इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा नहीं मिलती है, कभी कभार थोड़े से कभी कण में मिलती है। मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ, जो मैम बोल रही थी, मुझे लगता है कि मैं डांस करते करते मैं कहीं खो गया हूँ और आज कुछ एक अलग सा काम किया, उसी विद इन द फ्रेम, जो फ्रेम मेरा है उसी फ्रेम से मैं अलग सा काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं हर आइटम हमारे छाऊ में एक आइटम्स के बारे में हमको पढ़ाई जाती है, एक आइटम्स के बारे में समझाई जाती है, उसकी कैरेक्टर के बारे में समझाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ कि हम मुखौटे की प्रयोग करते हैं और मुखौटे की प्रयोग से हमें उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए इजी हो जाता है। जैसे ही हम कॉस्ट्यूम धारण करते हैं और मुखौटा पहनते हैं, अगर मैं रात्रि का रोल कर रहा हूँ या सूर्य देव का रोल कर रहा हूँ तो ऑडियंस भी मुझे देख नहीं पाती है कि मैं शरधराचार्य हूँ या रात्रि हूँ। उनको लगता है कि रात्रि है और उनका भी मानसिक स्थिति कहीं और पहुंच जाता है और मेरा तो ऑटोमेटिक पहुंचता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति जो है वो हमें गुरु से ही देन मिलता है, जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम शिक्षा लेते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, देव के साथ हम गुरु को तुलना करते हैं। तो हम जब भक्ति की बात करते हैं ना केवल भगवानों की बल्कि अपने कर्मों की, अपने काम का, जो काम आप करते हैं अगर उस काम पे आपको भक्ति नहीं है तो फिर आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी कभी भी। और जहां तक मुझे एहसास होता है कि परमात्मा के साथ मिलना या अपने काम को उनके साथ जोड़ना, वो कभी कभी क्षण भर के लिए मुझे स्टेज में मिलता है और मुझे मिलता है और मैं उस दिन बहुत आनंदित हूँ। अगर आप कहेंगे उसे तो परम आनंद जो मिलता है और हमें भी मिलती है और वही चीज ऑडियंस भी बोलती है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे गुरु लोग जो परफॉर्मेंस करते थे, आज हम लोग बात करते तो हम करते अरे वो सुधीर नारायण सिंहदेव और केदारनाथ साहू जब करते थे हर पार्वती, यार वो विचित्र था। आज हम कर रहे हैं लेकिन वो कुछ अलग करते थे, क्यों क्या करते थे। अब एहसास होता है जब हम इतने साल नाचने के बाद जब हम स्टेज में जाते, अरे वो तो बिल्कुल परम आनंद, परम उसी को उनके साथ विलीन हो जाते थे। वो मेरे हिसाब से यही है कि भक्ति एक मार्ग है और जो आपको इसको प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति एक मार्ग दिखाता है और उसमें से डांस हमारा एक माध्यम है। वाह, अलग अलग माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधि जी आप बोलिए, आपके जो भावनाएं हैं। तो हमारे दोनों बड़े आचार्यों ने जो बात कही उसी में मैं आगे कुछ बात जोड़ती हूँ। भक्ति ये धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि किसके प्रति हमारी भक्ति है। जब हम छोटे होते हैं तो एक अलग भक्ति होती है, वो दोस्त जो होते हैं उन्हीं में रमे होते हैं। भक्ति का अर्थ मुझे लगता है, जैसा अभी गुरुजी ने भी बोला, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, मिल जाना। हर स्टेज में, हर उम्र में हमारी भक्ति तो अलग होती है। जब हमें ये समझ ही नहीं थी कि कथक में हम इतना डूब जाएंगे या आगे इसके साथ जो भक्ति होगी या कृष्ण के साथ जो भक्ति होगी वो हमें कहाँ ले जाएगी या मंच पर खड़ा ही नहीं करेगी, वो तो वृंदावन पहुंचा देगी। भक्ति धीरे 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 समझ आती है। हमारे बचपन के रूप में भक्ति अलग थी, जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारी दूसरी भक्ति होती थी। यहाँ तक कि पढ़ना, क्लास में शिक्षक से सीखना, टीचर से जानना और क्लास को बंक भी कर देना, कभी कभी क्लास भी ना करना, ये सारी ही चीजों में हम मिले होते थे, जुड़े होते थे। और किसी किसी चीज में भक्ति, रसोई में खड़े होते हैं तो वहां दूसरी तल्लीनता शुरू हो जाती है। तो जो भी हम करते हैं वही भक्ति है। और अब हम लोग चूंकि नर्तक हैं, हम दूसरी तरह की साधना से जुड़े हैं, कृष्ण की आराधना से जुड़े हैं, नृत्य को साध रहे हैं, तो यहाँ पे जो भक्ति जुड़ती है, लेकिन वो एक स्टेज के बाद ही भक्ति का अर्थ समझ में आता है। और जैसा आदरणीय शोभना दीदी ने भी कहा, द्वैत अद्वैत है, आकार निराकार है, साकार है, ब्रह्म है, अलग अलग रूप है। जो जो किताबों में पढ़ते जाते हैं अलग अलग, बिल्कुल जैसे कमल की पंखुड़ियां फूलती जाती है एक एक चीजें,
आती जाती है। और अभी कितना तो समझना बाकी है, कहाँ हम भक्ति को समझ पाए हैं, कितनी चीजें तो हमसे भी छूट गई हैं। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी जो जो डूबेंगे इसमें शायद कुछ समझ भी पाए मोती जैसा कि भक्ति क्या चीज है। नवधा भक्ति की बात जो हमारे राइटर्स करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, कितनी सुंदर भक्ति है। जब 9 प्रकार की भक्ति को पढ़ो तो रोमांचित हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं कि भक्ति का एक ये रूप भी है। भक्ति का सिर्फ ईश्वर के साथ ही भक्ति नहीं है, जैसा भी गुरु जी ने कहा माता पिता से भक्ति, वो भक्ति एक अलग स्वरूप देती है। और भाई बहनों से, बंधुओं से, अपने काम के प्रति भक्ति। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा, मेरा जो भी अभी तक का सफर रहा उसमें कई बार हम इस मार्ग में चलते 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 इधर उधर भी हो जाते हैं, भटकते भी हैं, और फिर जब हम आकर के वापस अपने कर्म में लग जाते हैं, सच्ची भक्ति तो वही है। मेरा जितना ज्ञान है मैं उसी हिसाब से बता पाई। धन्यवाद। जयंती माला जी, आप बोलिए, आपका जो विचार है, भावनाएं हैं। जी, मेरा तो विचार क्या है, मैं तो ऐसे खानदान में पैदा हुई हूँ जहाँ की इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार लोग भक्ति के रास्ते में चले। मैं तो ये कहती हूँ, नृत्य कला जो हमारा है, भारत के सारे नृत्य कला, संगीत जो भारतीय हैं, शास्त्रीय हैं, वो भक्ति का एक स्वरूप ही है। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। साधक लोग इससे साधना करते हैं। 4 आयाम को आप अगर साध लेते हैं, मन, बुद्धि, ऊर्जा और शक्ति, ये चारों चीजों को जब आप, तन भी है उसमें, जब शक्ति, मन, बुद्धि और ऊर्जा, ये चारों आयाम को जब आप साध लेते हैं तो आप मन से तो एकदम पवित्र हो जाते हैं, आपकी आत्मा एकदम शांति प्रिय हो जाती है, और आप जो भी इच्छा आपकी हो, जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं, वो साधक उस जगह वो पहुंच जाता है। और उस साधना के लिए कम से कम 12 घंटे की जरूरत होती है। वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नृत्य कला का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे गाने, चाहे वाद्य हो। इस चीज को पाने के लिए, मन की शांति के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए इतना तो जरूरी है। मगर मैं ये नहीं कहती कि आप घुंघरू बांध के 12 घंटे रियाज करो। 12 घंटे रियाज न करो, वो दिमागी तौर से, तन से, मन से, ऊर्जा से और शक्ति से, चारों चीजें इन्वॉल्व हो जाए, वो तब जाके आपको उस मुकाम में पहुंचाएंगे। जो भी आज यहाँ बैठे हैं, शोभना जी हैं, हमारी मम्मी सितारा देवी, उन्होंने 4 आयाम को पा लिया था। हम तो समझ नहीं पाए, मगर अब समझने लगे हैं। 4 आयाम को उन्होंने पाया। कैसे? 24 घंटे मैंने उनको देखा कि वो नृत्य कला के अंदर लीन थी। यानी खाती थी तो भी तोड़े टुकड़े बोलती रहती थी, बाथरूम जाती थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। यानी वो, हमने देखा ही नहीं कभी कि वो नाच नहीं रही हो, किचन में खाना पका रही, घुंघरू पहन के नाच। तो ये क्या है? ये यही है, तप है। तो हमारी शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला सारे तप हैं ये, मगर उसको उस तरीके से किया जाए, उस तरीके से सोचा जाए। आज के जनरेशन के लिए मैं खास करके बोल रही हूँ। ये हमारे जनरेशन के लोग तो समझ चुके हैं इस चीज को कि आपकी आत्मा कैसे शांति प्रदान करेगी, आपकी आत्मा कैसे क्लीन होगी, नीट होगी। आध्यात्मिक में हम लोग रह चुके हैं, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पा रहे हैं। मगर आज के जो जनरेशन हैं वो भटक रहे हैं। उन्हें बहुत जल्दी नाम, बहुत जल्दी शोहरत, बहुत जल्दी पैसे, बहुत जल्दी इस दिशा में जा रहे हैं। तो उन्हें कम से कम ये हम सबकी बातें जानी चाहिए। उन सबों को इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि जल्दी नहीं है। ये नृत्य कला, गायन कला, वाद्य कला जल्दी नहीं है। धैर्य रखें, सीखें, तप करें, साधना करें, तब जाके ये चारों विधाओं को मिलाएं एकाग्र होके, तो वो जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वो दुनिया की किसी चीज को भी चाहें उन्हें मिलेगा। ये सिर्फ नृत्य कला, गायन और वाद्य से नहीं है। जो भी विधा में जो भी आज के जनरेशन है वो पा सकते हैं। कोई भी महान बन सकता है। महान बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खास
खानदान में पैदा हो या किसी बहुत ज्यादा कुछ पैसा लगा के और बहुत सारा दिमागी तरीके से प्रैक्टिस करके महान बनना नहीं, महान कोई भी बन सकता है। मेरे तो ऐसा ही सोच है और मैं ऐसी शायद बिलीव करती हूँ, शायद आप सब। हाँ, अपना जी नहीं, वो तो अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन है, अपना मेरा नहीं। जैसे अगर जैसे सभी लोगों ने कहा, चीज तो वही है। और कि अगर स्पिरिचुअलिटी तो अलग वो है और भक्ति मार्ग ही है, जो हम लोग सभी बोल रहे हैं मार्ग है, लेकिन उसमें भी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी तो कई है। आप एक ज्ञान के मार्ग को अपना सकते हैं, एक आप कर्म के मार्ग को अपना सकते हैं, एक आप राजमार्ग को अपना सकते हैं, मतलब कि जिसमें मेडिटेशन है, कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन जो चीज है कि जिसमें सेल्फलेस सर्विस हो, सेवा की भावना हो, वो अपने से परे हो, जिसमें स्वार्थ का जो अंश है वो ना हो, निष्काम साधना, निष्काम साधना, निष्कामना आ जाए, उसमें वो बात आती है। और उसमें एक बहुत वो अच्छी एक कहानी है ना, कि जब ईश्वर के दूत आए थे कि किसी से पूछने के लिए कि मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन हमारे ईश्वर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपका तो इसे क्या मेरा नाम है? तो इसे नहीं, आपका तो नाम तो है नहीं। तो इसे मैं तो इसे आप क्या करते हैं? तो इसे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो लोगों की सेवा करता हूँ, बस मेरे पास और कुछ नहीं। मैं ये करता हूँ, ना वो करता हूँ, ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, बस खत्म। और फिर जब वो ईश्वर के दूत वापस आए तो उन्होंने पूछा कि तो इन्होंने क्यूरियोसिटी से पूछा कि भैया बताइए कि आपने क्या लिस्ट बनाया ईश्वर। इसे देखिए, ईश्वर ने फाइनल लिस्ट बना दिया है और उसमें सबसे ऊपर नाम आप ही का है, बाकी लोगों का नहीं है। तो कहने का मतलब कि जिसमें निष्काम हो, निस्वार्थ सेवा भावना हो, तो वही हर एक अंश में, हर एक मनुष्य में ईश्वर की प्रतिरूप। We often go through a lot of realization in this journey with dance, with art, with life, and we all have had this at least situations. I would want to be wrong to call it crisis, where we have felt that moment, hota hai na, epiphanous moment, a moment of realization, ke suddenly you got the strength to face it because of your art, because of your experience, and because of that belief in that, I would call it an alternate reality that helped you overcome this situation. We've all gone through it. So please share with us these kind of experiences that all of you have gone through in this journey with dance. You know, बहुत बड़ा जी। जयंती माला जी, मैं बोलूं? बोलिए या मैं बोलूं या जो भी बोले, मुझे सब बोलेगा जी। एक एक आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में कट रही है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि जब मैं बहुत ही यंग थी, मेरे उस समय पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में, और मैं बेहद सिर्फ 25 साल की थी। और फिर खुद ही जाकर के उनके शव को ढूंढा, पोस्टमार्टम कराकर ले आए, अग्नि दिया, मुख अग्नि दिया, और 2 दिन के बाद मथुरा फेस्टिवल में मेरा परफॉर्मेंस था। अब अंदर तो दुख से भरे हुए थे सब कुछ, लेकिन वो मैं कहूंगी कि ईश्वरीय शक्ति थी मेरे अंदर में, कि मैंने जाकर के परफॉर्मेंस किया। अंदर मैं रो रही हूँ और वहां मैं राधा कृष्ण की कर रही हूँ बातें और वो सब, लेकिन उस समय क्या आता है, शायद वो ईश्वर की ही शक्ति थी कि वो कि उन्होंने वो उस तरह का दिया। So you know, these are moments when you don't understand how you got that inner strength, what has happened, but you have, I think it is that faith, that belief, वो जो belief है, वो faith है, वो एक भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, जो कुछ भी आप कहिए, जिस कोई भी नाम से कहिए, वो आपको अंदर से अंदरूनी शक्ति देती है। तो अब जीवन ने बहुत कुछ इम्तिहान लिए हैं मेरे, और जब स्किन प्रॉब्लम हुआ, लोगों के ताने सुन रहे थे, सब कुछ सुन रहा था, और अंदर
अपने को तो फिर हम लोग का तो काम ही है नृत्य करना, पब्लिक का काम। और फिर कभी कभी आदमी मायूस होता है, हम लोग सभी इंसान हैं, लेकिन फिर भी वो नृत्य के कारण, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो नृत्य के कारण वो एक अलग सी शक्ति मिल जाती कि भैया आगे चलना है, मुझे तो और कुछ सूझता ही नहीं है, सिर्फ वही रास्ता है। और वही कई बार जब शशधनिक जी ने कहा कि स्टेज पर, जी हाँ, मेरे अगर आप लोग देखें तो यहाँ एक है और मार्क और यहाँ मार्क है, स्टेज पर डांस कर रहे हैं, वो एकदम उसमें लगे हुए हैं, टीका, माथे का टीका निकल गया, वो यहाँ मारे जा रहा है, घुंघरू से वो कट रहे हैं, मेरे पैर के अंदर वो खून निकले बह जा, लेकिन उस समय तो कुछ, वो एक अलग सी शक्ति है, आप उसे जो भी नाम से कह दे वो आगे ले जाती है। और मैं सिर्फ कहूंगी कि ये नृत्य ही है। और एक बहुत बड़ी चीज आपने देखा होगा कि और मैं इस तरह से अपनी जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स के बारे में कह रही हूँ, पारंपरिक जो डांस फॉर्म्स है, कि इतना ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया, सब लोग लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस इतना हुआ, लेकिन उसमें अधिकतर, आई वुड से 99.9% आर्टिस्ट, 1.01 तो होता ही है सबने, लेकिन 99.9% हमारे जो ट्रेडिशनल कलाकार है, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हुए, किसी को खाने का नहीं है, किसी को मकान के रहने का वो किराया भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और उस अब वो इमोशनली इतना डिस्ट्रेस नहीं अपने आप को कर दिया कि वो आगे जूझ रहे हैं। और वो मैं तो कहूंगी कि वो शक्ति है, वो हमारे जो कलाएं हैं उसकी शक्ति है कि जो हमें ले जाती है। बिल्कुल। मैं बोलूं? जी, मैं बोलूं? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैम की एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में एक नहीं दो ऐसी घटनाएं हुई, जिस घटना से मैं बड़ी जबरदस्त निकला हूँ कि मेरे फादर का 2003 में डेथ हुआ और वो दिल्ली में बीमार थे, और दिल्ली से मैंने उनको बाई ट्रेन सरायकला रवाना किया और सरायकला में रात को मर गए। और सेकेंड डे मेरे पिता का फ्यूनरल भी नहीं हुआ था, मतलब फ्यूनरल होने के बाद मुझे उन्होंने टेलीफोन किया और मैं सोनाल मैडम के साथ श्री राम सेंटर में हर और पार्वती का अर्धनारी शो नाचा हूँ उनके साथ। फिर 2007 में हम लोग चारों ब्रदर, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, एक तो मेरे पिताजी के जो बड़ा बेटा का काम होता है वो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे मन में ग्लानी है, अभी भी है, स्टिल है। और मेरी माँ की डेथ हुई, हम जापान के टूर में थे और 4 ब्रदर जापान में थे, और जिस दिन मेरी माँ सरायकला में मरी उस दिन 4 परफॉर्मेंस था, दिन में 3 को परफॉर्मेंस था, 4। और हम लिटरली, मुझे तो खबर हो गई थी, मेरे भाइयों को खबर नहीं दिया था मैं लिटरली रो रहा हूँ मन से। लेकिन पहला परफॉर्मेंस मेरा निकल गया था, दूसरे परफॉर्मेंस में मैं अपने मन को सुदृढ़ कर मैं अपने भाइयों को ना बताकर मैं अपने भाई के साथ नाच रहा हूँ, रात्रि और चंद्रमा। लेकिन जब तक ये परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ, जब तक हम लोग परफॉर्मेंस करते रहे, तब तक मैं किसी को बोला नहीं था। वो एक शक्ति कहाँ से आई तो वहीं से ना, इसी के थ्रू से तो आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो शक्ति है, ये हम लोगों की जो इतने दिन की साधना है, ये जो हम साधक बन के इसको बैठे हुए हैं, यही हमको मजबूत करती है। और मैम ने सही बात बोला कि अभी देखिए ये जो घटना हुई इन दौरान 5, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो गया, ये तो सब निठल्ले हो गए थे बेचारे। लेकिन आर्टिस्टों ने छोड़ा नहीं अपने कसर कि नहीं, मैं किसी थ्रू से मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। आपको मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से भाग आया मैम। दिल्ली में इतना हुआ, मेरे पास घर नहीं, मतलब वो स्टूडियो नहीं थे, मैं कहीं से बोल नहीं पा रहा था। मैं दिल्ली से भाग आया फ्लाइट से और सरायकला में स्टूडियो बना के मैंने कितने काम किए, और सारे आर्टिस्टों को बुलाया, एक आर्टिस्टों को बुला के एक आर्टिस्टों को छऊ के बारे में बोलवाना, मैंने कितने काम किए। क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि वो तो फिर हम निठल्ले पड़ जाते सब लोग। ये बात नहीं है, एकदम मैम ने सही कहा कि इतने दिन की जो तपस्या है और जो साधना है, और कहीं ना कहीं हमको लेके हमारी ब्रेन को वहां तक पहुंचाती है, और हमें उस काम को करने की पूरी ताकत मिलती है, शारीरिक भी और
बिल्कुल बिल्कुल सही। बोलिए विधि जी, बोलिए। मेरे भी अपने अनुभव हैं, और जैसा कि आप लोगों ने भी बताया, सब किसी का भी जीवन बहुत सुंदर नहीं होता, कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, और मेरे इस छोटे से जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मुझे वो घटना याद आ रही है जब मेरा बेटा हुआ था और ऑपरेशन टेबल पे मेरी जो बैकबोन है उसकी टिप होती है वो क्रैक हो गई थी। तो मेरे लिए बैठना और बीइंग ए डांसर, क्योंकि मैं नौकरी भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए बस एक सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था कि मैं अब खड़ी कैसे होंगी और डांस कैसे होगा। ये बच्चे को पाने की खुशी तो अलग थी, लेकिन बीइंग ए डांसर मुझे बस ये एक चिंता सताती थी, अब क्या होगा। लेकिन अगर मैं खड़ी होकर आज कर पा रही हूँ तो ये वो भक्ति थी और फिर ये स्पिरिचुअलिटी थी। ये दोनों चीजों का जो सहयोग था उसने इतना आत्मबल हर बार दिया। ये तो एक घटना का जिक्र किया, और सभी के जीवन में बहुत सारी अनेक घटनाएं हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसे मोड़ आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो जो दीदी बोल रही है एक ईश्वर शक्ति देता है। मैंने एक चीज और महसूस की कि जब हम इन परेशानियों से हटके फिर खड़े होते हैं तो शायद ईश्वर और तेज डाल देता है और शक्ति देता है और हिम्मत दे देता है कि नहीं, तुम फिर से खड़े हुए ना, लो मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम न सिर्फ ये करोगे बल्कि एक पादान और आगे बढ़ के काम कर जाओगे। जब मुसीबत में किसी होते हैं और मंच पर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ कैसे नृत्य होता है या कौन सी शक्ति होती, वो शक्ति तो है ही है। यही स्पिरिचुअलिटी है, जब आत्मा का ज्ञान, शरीर एक है ऊपर वाले का जिसको मानते हैं, अपने अपने ढंग से सब मानते हैं परमात्मा है, लेकिन हम सब उसका स्वभाव अलग अलग शरीरों के रूप में यहाँ पे पृथ्वी पर है। हम वो जब स्वभाव ढूंढते जाते हैं, शरीर ढूंढते जाते हैं आपस में, जो उसके साथ एक लौ लग ही जाती है। एक अभी हाल का ही वाकया है, शिवरात्रि का दिन था और मुझे बहुत सौभाग्य से काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यक्रम करने को मिला, और मेरा ये हाथ स्पॉन्डिलाइटिस के कारण उठ ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने तुरंत हाँ कहा कि दरबार में हाजिरी लगानी है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ हाथ पैर का कुछ नहीं है। और वहाँ पर एक ध्रुपद पर नृत्य किया। वो ध्रुपद का जब मैंने खुद अपना वीडियो देखा तो मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ। मैंने पट्टी तक बांध रखी थी पेट में, बैक स्लिप थी और सारा कुछ था, लेकिन वो नृत्य कैसे किया मैं खुद आश्चर्यचकित थी। मैंने ऐसा नृत्य या इतनी तेज स्पिन नहीं लिए थे कभी। वो सिर्फ उनकी शक्ति थी जो वहाँ बुला के और नचा के ये बता रहे थे कि देखो मेरा अंश ही तुम में है, तुम्हारे में अभी बहुत शक्ति है, तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। तो ये जो वो चीज बढ़ते जाते हैं रूप के रूप में, नृत्य के रूप में, साधना के रूप में, या कितने लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ गुरुजी बैठे हैं, शशधर आचार्य जी, मैंने आपसे भी 3 महीने सीखा है लखनऊ में, तो किस माध्यम से सर आपको याद होगा, संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ वाले में, याद है जी, तो किस माध्यम से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये करने में एक अलग चीज है, ये जो चीजें, ये जो लोग इंस्पायर करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्रेरणा तो उसी की है। चाहे पढ़ने के माध्यम से हम कोई भी मार्ग, अभी हम लोगों ने बात की भक्ति की भी और आध्यात्मिक की, तो ये शक्ति उसी की है, ऊपर वाले की। तभी कहा जाता है कि ईश्वर के सबसे प्रिय और सबसे करीब कलाकार होते हैं, चाहे वो गायक हो, वादक हो, नर्तक हो, उनको वो अपने करीब रखता है और सब छूट देता है। तो ये शायद हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उसने हम लोगों को अपने बहुत करीब रखा है। धन्यवाद। जयंतीमाला जी, आप कुछ? जी, मेरा भी एक ऐसे ही एक घटना है जो मेरे साथ गुजरी है। मैं ताज महोत्सव फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के लिए गई हुई थी और मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था। शाम को परफॉर्मेंस था, ये सुबह दर्द शुरू हो गया था। तो हमने डॉक्टर से चेक कराया, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में फाइब्राइड है और वो फट चुका है, आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करके हॉस्पिटल में रहना होगा, यू कांट परफॉर्म। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता, मुझे परफॉर्मेंस करना ही है, क्योंकि मेरा नाम सब जगह दिया हुआ है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे और हम अपने आत्मा से क्या कहेंगे। मैं मर भी जाऊं तो मुझे तो परफॉर्मेंस करना है।
तो बोले आप एक बहुत बड़ा रिस्क है आपका, परफॉर्मेंस करेंगे तो और ज्यादा, क्योंकि आपका वो फाइब्रेट एकदम ब्लास्ट है। मैंने कुछ सुना नहीं, उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ वगैरह दी, पेन किलर वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ किए। शाम को मेरा परफॉर्मेंस था, उसी पेट दर्द में मैं जैसे ही स्टेज में पहुंची, पता नहीं कहाँ से माँ शक्ति ने मुझे, दुर्गा माँ ने मुझे अपनी शक्ति प्रदान की। मैं बस रो रही थी उस वक्त, अभी भी मुझे याद आ रहा है तो, कि मैं कैसे परफॉर्मेंस करूंगी। और मैं स्टेज में गई और दुर्गा स्तुति से ही हमारा परफॉर्मेंस था। मैंने शुरू किया, धीरे 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 वो दर्द जो था वो मुझे एकदम गायब हो गया। और 3-3.5 घंटे परफॉर्मेंस की, एम्बुलेंस बुलाया गया और मैं वहां से सीधे हॉस्पिटल गई और आगरा में मेरा वो ऑपरेशन हुआ। तो मेरे यूट्रस में फाइब्राइड था, वो सब बस वो ईश्वर की, अपनी माँ दुर्गा को मैं बहुत मानती हूँ, शिव को बहुत उनकी भक्त हूँ, तो बस उन्हीं की कृपा रही। और वो एक बहुत अच्छा, मेरे सुखदेव महाराज जी हमारे ग्रैंडफादर ने एक कविता भी लिखा है, डांस फॉर्म का कविता है, कवित परन कहते हैं, वो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ एकदम। तो बस उसी वक्त जब मेरे स्टेज में वो चल रहा था, शुंभ निशुंभ वध कर रही थी मैं, तो एकदम माँ काली का, दुर्गा का वो सब परन चल रहा था। तो उसी में दुर्गा परन मैंने जब लिया, जटे देट कृदाते ते धाकृता दादा कृता देट ना 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 धुनता था, किते काटी था, किते किते काटी था, किते किते काटी था, कटी कते कते देट ना 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 धुनता था, चमकता छिपता दामनी सी दमकता खड़ग खप्पर खप्पता, दुर्गे दुर्गत नाशिन सुर अशुद दल मल शुम निशम दानव मारत दानत कनिगम त्रय गुण त्रिगुण जय 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 सुर सकल नील भय गान गावे ताल जय 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 मृदंगम तक दिड़ दिड़ तक दिड़ ताड़ी तता तक तक दादा कृतान दे दान दे दान दे तक दादा कृतान दे दान दे दान दे तक दादा कृतान दे दान दे दान दे दा। वाह, बहुत अच्छा, वहाँ पे क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात है। इसी में शक्ति है, इसी में शक्ति है, बिल्कुल। बस माँ कृपा थी जो कि बचा लिया मुझे, और आज तक मैं आप लोगों के सामने हूँ। और अपना जो भी स्तुति, जो भी मैंने सीखा अपने गुरुजनों से, माता से, सुखदेव महाराज जी से, तारा देवी से, गोपी किशन जी से, सितारा देवी से, माँ से, अपने जो भी मैंने सीखा और जो भी मैंने सुना बचपन से, अब तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गई हूँ, बहुत ज्यादा उस तरफ चली गई हूँ। और जैसे शोभना जी ने कहा कि सेवा भाव सही है, सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है वो, और निस्वार्थ होना चाहिए सेवा, वो करने की कोशिश करती हूँ मैंने बहुत सारे जानवरों को, मेरे डॉग्स वगैरह को और बिल्लियों के लिए, जानवरों के लिए बाहर खाना वगैरह भी भिजवाती हूँ। घरों में भी बहुत सारा जानवरों को मैंने पाल रखा है, उनकी सेवा करती हूँ। और भी लोगों की, कलाकारों की जो सेवा मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। और मेरा तो सेवा ऐसा है कि सारे कलाकारों को मैं चाहती हूँ, अभी मम्मी का मैं 100 इयर्स मना रही हूँ ये फेसबुक ऑनलाइन पर, सितारा देवी पेज पर। तो घरानेदार तो सभी कोई कर रहे हैं, मगर बड़े बड़े कलाकार लोग भी कर रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और करने चाहते हैं, उनको स्टेज अच्छा मिले, बहुत जरूरी है, आगे बढ़े, उनका दिल बड़ा, जी हाँ, उनका दिल बड़ा हो, उनको पुश करें। तो हम सब मिलके उनको पुश करेंगे तो उनको शास्त्रीय संगीत में, नृत्य में रुचि आएगी। वो सोचेंगे कि हमें कुछ मुकाम मिल रहा है तो हम इसको और आगे लेके जाएं, कुछ कामयाब बने। तो ऐसा मेरा तो चल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत आनंद है। तो we will conclude this session, and I would just like to know in 2 words, like very briefly,
what would you suggest the younger generation, how they can cope with these various disturbing things that are going around us? I don't even want to mention the pandemic anyway, and how they can cope, especially our young dancers. They are performing on like digital platforms. But what else can they do to keep their sanity, their equilibrium? If all of you could give a bit of, I wouldn't say message, but just share your ideas, how they could come out of the situation mentally. Well, I think they themselves are doing a lot of work. I think this online medium has really helped. Look at the kind of artists who have come out. Absolutely. Not all of the same caliber, but nonetheless, what is important is that they have been able to express themselves. Yes, and that is what is important, that you have provided an outlet. And some of them have come up with such creative works, yes, in their own limited way. It's marvelous to see their creativity flowering. So I think what we can just do at the moment is help them. Exactly. Give them more platform. They themselves are seeking it, and they are doing it. They are taking the space. But then if the more space could be given to them, because after all, every artist or every person needs companionship, needs a relationship, exactly, needs some. So I mean, it doesn't mean when I'm saying companionship or relationship, even if it's not physical, it is even through a virtual medium. It is a feeling of connectedness, because after all, man is a social animal, and somewhere you have to make that person feel that the person belongs, the person is valued. That's true. So that artist has to be valued. Whatever be the effort has to be valued. I mean, हम लोग criticize कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं था, वो नहीं था, वो जब अंदर से आ रहे हैं ना, it's a very spontaneous. उन्होंने effort किया, हाँ, ये बहुत ही, I think कि, और इस तरह से, और जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म जिस तरह से हम लोग सभी लोग दे रहे हैं इंडिविजुअली, सब लोग अपनी अपनी तरह से, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। और आप सुषमा जी इतना कर रही हैं, आचार्य जी इतना कर रहे हैं, जयंती माला कर रही हैं, विधि जी कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, सभी लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, और एक दूसरे दे आर रीचिंग आउट। उन लोग बांध सेतु भी बन रहे हैं कि आप एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक अ लॉट इज हैपनिंग, लेकिन हम और भी कर सकते हैं। वो तो मैं ये चाहता हूँ, मैं मैम के इसमें बिल्कुल, मैं हमेशा मैम का उस पर सहमत रहता हूँ, क्योंकि मैम एकदम बिल्कुल निचोड़ निकाल देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो चीजें ना, ये जो कीड़ा है, ये जो कलाकार बनने का एक कीड़ा होता है, पागलपंती, बचपन से जब चलता है, मतलब पेरेंट्स जो हैं या जो गुरु है हमारा, है ना, अभी क्या है कि वो कीड़े की अभाव है। मैं जानता हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो कलाकार है वो अर्ध पागल है, सीधी बात है, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी उसकी कोई समय नहीं है, कोई टाइम बार नहीं है। और आजकल के बच्चे तो एक साथ चार काम करते हैं, हम तो एक काम करते हैं, वो तो 4 काम करते हैं। मैं अपनी बेटे की बात कर रहा हूँ, मैं उसको इतना समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कहता है पापा ठीक है ना, समझ जाएंगे, लेकिन हमारा काम है उनके ऊपर उन चीजों को लाने का हमारा उत्तरदायित्व है। और हमें अपने स्टूडेंट को या जो भी स्ट्रगलर है इस समय में, उसको समझाने की है। अरे कोई बात नहीं, 100 लोगों को आप बोलिए, 10 लोग समझ जाए ना, 2 लोग समझ जाए ना, वो 2 लोगों से फिर 100 लोग हो जाएंगे। हमें 2 लोगों को कन्विंस करना है। मुझे तो मैं नाराज नहीं हूँ, ये अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत टैलेंट है उनमें। उनकी टैलेंट को सही पहचान के गुरु की शिक्षा दिया जाए ना, तो बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात है कि मैं खुद देख रहा हूँ ना कि मैं इतने बच्चों को सिखाता हूँ, इतने थिएटर में जाता हूँ, करता हूँ, उस सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। उसमें 1 या 2 लोग होंगे जो पूछेंगे, गुरुजी आपने ये करा तो क्यों किया, इसको क्या कहते हैं, क्या? वो जो एक कीड़ा है खोजने का, वो खोजने के कीड़ा को डालना पड़ेगा। और
ऑटोमेटिकली ये समय और आने वाला जनरेशन जो है हमारे कला को समृद्ध करेगी, ये मुझे उम्मीद है। कला कभी मरेगी नहीं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 100 साल में हर कला में एक व्यक्ति आता है जो आर्ट को थोड़ा लिफ्ट करता है और बाकी सब हम करने वाले हैं। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं बड़े बड़े गुरुओं को देखता हूँ और मेरे मन में उनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो मुझे ऐसा खुशी लगता है कि देखो ये इस आदमी ने 70 साल 50-60 साल नाचा यार। कम होता है 50-60 साल। एक आदमी, हम अपने बॉडी को अगर सही नहीं रखेंगे 60 साल तक हम चल नहीं पाएंगे। मैं यही कहता हूँ, मैंने कहा कि आज अगर हम दौड़ रहे हैं, आज अगर हमारे पास शुगर नहीं है, आज अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इसकी टेंशन ही नहीं है हमको तो मेडिकल का टेंशन ही नहीं है कभी जिंदगी में। सही बात। वो चीजों को रहने के लिए आपको पास वो ताकत वो आपको भरना पड़ेगा और बचपन से ही बच्चों को इस ढंग से पालना पड़ेगा जिस तरह से हमारे गुरुओं ने हमको पाला, तब जाके कहीं हमारा दिमाग इस पर लगा और लगने के बाद आज हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं या 2 शब्द, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा, वही बात, हर चीज तो अनुभव से बात होती है। अगर अनुभव नहीं करता तो फिर क्या कहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? अपनी बॉडी को नहीं समझेगा, अपनी मन को नहीं समझेगा। मैं यही कहता हूँ ना कि योग, चाहे आप योग कहिए, चाहे आप पूजा पाठ कहिए, चाहे आप भक्ति कहिए, शरीर और मन, इन दोनों का मैं तो कहता हूँ कि बॉडी और माइंड का खेल है। अगर इस खेल को समझ जाओगे बेटा, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, हर चीज को अचीव कर पाओगे। अपनी बॉडी और अपने माइंड को समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो one thing I just want to add one thing. During pandemic I deeply observed कि हमारे जितने भी बड़े गुरु हैं, ये सब को हम लोग कितना पास से देख पाए, जबकि कहाँ देख पाते थे। हम लोग अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं और ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है इसने तो कितना पास कर दिया। अभी कितने आराम से गुरुजी को देख पा रहे हैं, शोभना दीदी को, हम सब बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं ऐसे, बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आप ये देखिए महाराज जी ने कितने सारे चैलेंजेस दे डाले स्टूडेंट्स को कि अब नाटक का ठुंगा का ये चैलेंज लो, ये तिहाई का चैलेंज लो, ये तक डिम तकिच की तिहाई है इसका चैलेंज लो। सारे बच्चे जुट गए थे शुरू में और जो कुछ उनको ये लग रहा था कि हम घर में बैठे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ और हम लोग भी उनके स्टूडेंट ही हैं, तो जो ये लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे, तो बस फटाफट हमारे गुरुओं ने ऐसी शक्ति दे दी कि शुरू हो जाओ, चाहे घर में ही बैठे हो तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और करो। न सिर्फ प्रैक्टिकली बल्कि थ्योरेटिकली भी। मतलब मैंने इतने सारे लेक्चर्स क्लास में भले देते रहे हैं या सेमिनार्स में, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे 20-20, 25-25 लेक्चर्स एक विषय पर, और इस दौरान जो पढ़ने को मिला उसका मजा ही अलग था। सिर्फ एक टॉपिक अगर मिल गया, रस पे बोलना है या नायिका पे बोलना है, अलग अलग वेबिनार्स इतने आयोजित हुए जिन्होंने भी इनवाइट किया, उसके दौरान जो पढ़ा तो वापस ऐसे लगा कि अपने स्टूडेंट लाइफ में आए, फिर से वो जोश, सब बुक्स निकाल के बैठना, क्योंकि और कहीं जाना नहीं था, बाहर जाना नहीं है, घर में ही रहना है, तो किताबों के साथ जो फिर से दोस्ती हुई। तो मेरा, जैसा कि आपका प्रश्न था, मैं दोहराऊंगी अपने न्यू जनरेशंस को भी, स्टूडेंट्स को भी, सभी लोगों को, कि एक ये फिर से कितना एक अपॉर्चुनिटी दे दी इस पैंडेमिक ने हमको। न सिर्फ ये कि आप घर पे बैठो, घर पे भी बैठो, खुद को भी समझो और वापस फिर से यात्रा शुरू करो। वो जो पहले दिन की क्लास हमने ज्वाइन की थी, कथक सीखने का जो साथ ही थिएटर शुरू किया था, कि वापस वहीं से चलो और फिर से चलते 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 सोचो ना अपने बारे में कि कितना विस्तार हो गया ये वर्चुअल माध्यम से। कितने लोगों को हम नहीं जानते थे, लोग हमें जानने लगे, हम उनको जानने लगे। स्टूडेंट्स से एक अलग तरह का नाता बना, जो हम क्लास में हमारी बातचीत नहीं हो पाती थी। जब ऑनलाइन हम लोग BHU के माध्यम से क्लासेस ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ एक अलग रिश्ता बन गया और वो रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ है, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है। तो जो डर के मारे क्लास में नहीं पूछ पाते थे अगर कोई एक आध चीज, तो अब वो आराम से पूछते हैं जूम मीटिंग में, क्योंकि उन्हें पता है मैम सामने नहीं है। तो वो जो एक मजा है सीखने सिखाने का, उसमें एक नई जान आई है। तो मेरा तो बहुत सारा कहना है सभी यंग आर्टिस्ट से कि खूब अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आपने चैनल्स भी बनाए हैं, आप नए काम भी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखते हुए, देखते हुए, जैसे हम लोग ये देखते हैं, अपने ऊपर निगाह रखते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, बस इतना ही करना है। बाकी तो इसलिए तो बहुत सारे एवेन्यूज खोल दिए हैं, जो चीज हमने नहीं सोची थी वो सब भी अब सोचने लगे।
अपने कमरे में रह के, अपने रूम में रह के जो प्रैक्टिस करते थे वो लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई है और जरूर इससे तो बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। और जो सबसे बड़ी निधि एक जो हम लोगों को ट्रेजर मिला है वो ये कि हमारे जितने भी बड़े गुरु हैं उन सब ने दिल खोल के ज्ञान बांटा है, उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे दिया है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। तो जो है वो देते चलो, खूब बांटो। और इतना बांटा है कि एक बीच में तो मई जून में ऐसे लगता था कि किसको सुने, इनको सुने कि इनको सुने, और रात रात भर सुनते थे सब गुरुओं को, तो बड़ा मजा आता था। और ये विद्यार्थी बने रहे हम लोग, बस यही सब गुरुओं से प्रार्थना है। और स्टूडेंट से भी है कि बस स्टूडेंट बने रहो, उसी में जो मजा है और ये गुरुओं से लेने का, सुनने का। आज भी देखिए आप सिलसिला चलते रहे। मेरे लिए एक मोटी जीना। एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कला से वाकिफ हैं, लेकिन एक और भी वृद्धि हुई है कि बहुत लोग जो है इस दौरान साहित्य और संगीत और कला से भी जुड़े हुए हैं, नए नए लोग जुड़ गए हैं बहुत तो, बहुत और फिर मतलब और हाँ सॉरी मैम, वो मुझे याद आता है वही संस्कृत का जो श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ दिशा नहीं ना। तो फिर वो वहाँ उनको अब आज पता चल रहा है और किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही एक उपलब्धि है इस पैंडेमिक। मैं अपनी बात खत्म करूंगी एक शेर से कि ये प्लेटफॉर्म ने हमें दिया है एक मौका। मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद पर, रह गुजर जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। ये कारवां बहुत तेजी से बढ़ा है और जिसने बहुत कुछ हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत मैम एक मिनट बोलिए। मैं बिल्कुल एक शब्द में खत्म करता हूँ कि ये जो एक समय आया या इस समय में जो काम हुआ वो हमें सेमिनार को भुला दिया। सेमिनार कभी हुआ करती थी, मैं जब सीखता था गुरु लोग मुझे लेके जाते थे और सेमिनार से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति अब हुई है। और हमें नहीं बल्कि जो लोग इस पे नाचते नहीं है, कभी सुनते नहीं है, वो लोगों ने सुनना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ सरायकला में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लोगों को कोई पसंद नहीं है, लेकिन अभी मुझे बोलते हैं यार वो जो लेक्चर दिया था तुमने ना, बस इसका मतलब वो फॉलो करते हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि अरे हम इसके दौरान हम अपने ऑडियंस को बढ़ा दिया। कम से कम ये तो खुशी मानना ही पड़ेगा। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैं एक शब्द कहूँ, ये जो शुरू हुआ है, जो कि ये शुरू हुआ है, इसके वजह से बहुत सारी चीजें एक दूसरों से हम लोग मिल रहे हैं और अपनी चीजें व्याख्यान कर रहे हैं, जो आप बीती है वो बता रहे हैं। ये आते हुए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। वो इतने बड़े बड़े गुरुओं को और बहुत सारे कलाकारों को देख रहे हैं, तो उनको भी मिल रहा है और हम लोग को भी आपस में बहुत कुछ मिल रहा है। क्योंकि मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, मैं तो अपने को गुरु कभी भी नहीं माना मैं अभी भी सीख रही हूँ। आप बैठी ना तो आपकी वो अदायत, और क्या, मैं सीख ली मैं आपसे, आप बैठी ऐसे करके वो सब देख रही हूँ। शोभना जी को देख रही हूँ और नागर जी को देख रही हूँ और सर को देख रही हूँ, तो बहुत कुछ मैंने सीख लिया। अभी देखिएगा ये जब परफॉर्मेंस करूंगी ना तो ये सब चीजें आ जाएगी भाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for such a lovely, vibrant discussion, and we do hope that we will have some more of these exchanges on such lovely themes and topics. A very big thank you to all.